يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت أنها دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له عزك بالله يا أبتاه من الزهد. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فأتيني به فأتيته بالكساء اليماني فأتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتعلق كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه وقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمعت فوعدي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا الله يا رسول الله يا تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب فوزي قد زنت لك فدخل معهم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء. فأقبل علي نام الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعزلني أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا أوس وخليفتي وصاحب اللواء قد زنت لك فدخل علي تحت الكساء. Allah
ولا أمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا قلبا يدور ولا بحرا يجري ولا قلبا يسري إلا بمحبوب هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسوة. فقال نبي جبريل يا رب من تحت الكسوة فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب أتعزنوني أن حابد إلى الأرض ليكون معهم سعادة؟ فقال الله نعم قد أزدت لك. فأرحب تعمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله عليه يقول السلام والسكن التحية والإكرام يقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا عرض مادية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا قلب يدور ولا بحر يجري ولا قلب يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تنظرون يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا من وهي الله إنهم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد هوى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا ولي والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني برسالة نجم وذكر خبر أحد في محفل من محافله أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام وزم الله خذنا وفاء الشهدون ورب الكعبة. فقال أبي يا رسول الله فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني برسالة نجم وذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين فيهم معمون إلا وفرج الله همه ولا معمون إلا وكشف الله همه ولا تعلم حاجتي إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام وزم الله خذنا وسويدنا وقضى عليك أشياءنا فعز وسيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفاتحة مرحوم حسن جعفर मिर्जानी अपने सैयद अबुल हसन मिर्जानी और अजहर अब्बास अपने जैनब अब्बास
एक और पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। कौन कर सकता है, कौन कर सकता है इदराक अबू तालिब का, कौन कर सकता है इदराक अबू तालिब का, खानदान शहे लौलाक अबू तालिब का, खानदान शहे लौलाक अबू तालिब का। इनके पोतों को मोहम्मद कहीं अपना बेटा, इनके पोतों को मोहम्मद कहीं अपना बेटा, सोच कितना है लहू पाक अबू तालिब का, सोच कितना है लहू पाक अबू तालिब का। कह रहा है मेरे मौला का सलूनी कहना, कह रहा है मेरे मौला का सलूनी कहना, अर्श है शामिले अमलाक अबू तालिब का, चांद या पास है तारे अली अकबर का से, चांद या पास है तारे अली अकबर का से, सज गया देखिए अफलाक अबू तालिब का। पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस मसाइल के दो सदीना शरावट पेश करता हूँ, दूर पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुसैन जाता है मरने को है मेरी ज़ैनब, करीब आ गया अब वक़्ते आखिरी ज़ैनब, सलाम तुम पे ए बाबा की लाडली ज़ैनब। अरे ज़ैनब ने
शादी मदीने में जो देगा याद आओगे भैया। अरे अरे जिस माह से मनसूब थी भैया मेरी खुशियां थी सबसे बड़ी ईद मेरी तीसरी शाबान। अरे शाबान के जब चांद को देखेगी ये बहना याद आओगे भैया। अरे दीदार भी हो जाएगा बेटी के बहाने। अरे क्या शाम के जिंदान में आओगे सुलाने। अरे सोएगी नहीं जब मेरी लोरी से सकीना याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया याद आओगे भैया। सबसे पहले आप हज़रात सूरह फातिहा मरहूम सैयद हसन जाफर बिकरामी साहब के लिए और हसन अब्बास साहब नौजवान जो हैं उनके लिए और तमाम मरहूमों के लिए दुआ करें। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وشافع المحشر سيدنا المسدد بشيرنا الممجد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وآخذ حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما
बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल हकीम। सल्लल्लाहु दो मोमिनीन के बुलंदी दराजात के लिए एक ऐसा नौजवान कि जिसने पूरी ज़िंदगी आले मोहम्मद की सीरत पर और मवद्दत के रास्ते पर बसर की, और दूसरी शख्सियत मरहूम हसन जाफर बिलग्रामी साहब कि जिनके लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जिन्होंने अपने अहद के जवानों की अदाई तरबियत की है, अदाई तरबियत की है। और हमने जब से उन्हें देखा बचपन से, तो या तो मजलिसें करते हुए देखा, या महाफिल करते हुए देखा, या जश्न करते हुए देखा। मुख्तसर यूँ कहूँगा कि घर से बाहर आते थे तो सिर्फ काम आले मोहम्मद के काम के लिए आते थे, और दिनों रात यही मजलिसें, महाफिल, जश्न, उसको मुरतब करना, खुतबा का इंतज़ाम करना, अंजुमनों सलाम पढ़ने वालों को दावतें देना, पूरी ज़िंदगी मरहूम की इसी में गुजर गई। और यकीनन मैं हमेशा ये जुमला कहता हूँ कि मरने के बाद हुसैन के तारुफ से बेहतर कोई तारुफ नहीं होता। इसलिए कहता हूँ निस्बतें कायम कीजिए, निस्बतें कायम कीजिए। कोई झाड़ू दे के निस्बत कायम करे, कोई चांदनी बिछा के निस्बत कायम करे, कोई अदादारों की जूतियाँ सीधी करके निस्बतें कायम करे, कोई प्यासों को पानी पिला के निस्बतें कायम करे, कोई मजलिसों में बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ के निस्बतें कायम करे, कोई बुलंद आवाज से नारे हैदरी लगा के निस्बतें कायम करे। हुसैन के दरबार में इज्जतें तकसीम हो रही हैं। अब ये समेटने वाले का ज़र्फ है कौन सी इज्जत हासिल कर ले। इसलिए कि अगर कोई मर जाए और कोई कहे कि मरने वाला बहुत अच्छा इंजीनियर था, कोई कहे मरने वाला अपने अहद का गवर्नर था, कोई कहे मरने वाला बहुत बड़ा दौलतमंद था, तो निस्बतें तो सबके साथ जुड़ी हुई हैं, मगर निस्बतें महदूद हैं। अगर दौलत खत्म हो गई तो फिर तारुफ नहीं है, अगर तालीमी इदारे खत्म हो गए तो उस्तादों का कोई तारुफ नहीं है, अगर अस्पतालों में मरीज खत्म हो गए तो डॉक्टरों का कोई तारुफ नहीं है, अगर हुकूमतें खत्म हो जाए तो न गवर्नर की हैसियत है और न सदर की हैसियत है। लेकिन हमें पता है हुसैन कयामत तक जिंदा रहेंगे। जो हुसैनियत से जुड़ेगा वो कयामत तक बाकी है। इसलिए 1400 बरस से वो शख्सियत है कि जिन्हें हमने देखा है, ना हम उनकी खबरों पे गए हैं, ना हमने उनके बारे में कोई तफसील पढ़ी है, मगर हमें इतना पता है आले मोहम्मद वाले थे तो आज मजलिसें उनके जिक्र से चमक रही हैं। इसलिए कि निस्बत यहाँ पर काम आई, निस्बत यहाँ पर काम आई, और निस्बत तब कायम होगी जब अकीदा अच्छा होगा। खुदा तआला फरमाए, हो सकता है उनकी शख्सियत से किसी को कोई इख्तिलाफ भी हो, मुझसे भी हो सकता है, मुर्तज़ा भाई से भी हो सकता है, लेकिन जब अकीदा आ जाए तो सब एक हो जाते हैं। जब अकीदा आ जाए तो फिर किसी किस्म की बहस नहीं रहती। यही वजह है जनाजे में भी अकीदे का ऐलान होता है, अल्लाहुम्मा ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, हम सिवाय खैर के साहिब मैयत के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। यानी गवाही
बिल्कुल ऐसी है जैसे मुस्तकर होता है। और अगर आप पूछे मुस्तकर क्या है, तो मुस्तकर की तारीफ जो इस आयत में बयान हुई, सूरह यासीन की आयत जो सनाम कलाम में पढ़ी है, वशम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल हकीम। सूरज अपने मुस्तकर के साथ सफर को जारी रखे हुए है। ज़ालिका, ये तक़दीरुल अज़ीज़िल हकीम, ये इसकी तकदीर है, ये इसकी तकदीर है। क्या है? मुस्तकर के साथ है, मुस्तकर के साथ है। जहाँ अकीदा हो वहाँ तकदीरें समझ जाती हैं। जहाँ अकीदा डगमगा जाए वहाँ मुकद्दर भी फूट जाता है। जहाँ मरकज खराब हो जाए वहाँ पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि जहाँ प्रकार की नोक रखते हैं उसे मुस्तकर कहा जाता है। मुस्तकर वो नुक्ता है जहाँ प्रकार की नोक होती है। अगर ये मुस्तकर से हट जाए तो दायरा बर्बाद हो जाता है, दायरे से बाहर हो जाता है। इसलिए अकीदे का मुस्तकर है, सूरज का मुस्तकर है। अगर सूरज अपने मुस्तकर को छोड़ दे तो जहाने आलम तक तो ताराज हो जाए। आपने देखा बगैर मुस्तकर के सूरज का हिस्सा है, तवज्जो कीजिएगा, आता है तो मुस्तकर पर, जाता है तो मुस्तकर पर। सूरज का मशरिक से निकलना ऐने फितरत है और मगरिब में गुरूब होना ऐने फितरत है। अल्लाह का पूरा निजाम फितरत के ताबे है, फितरत से हट के कुछ भी नहीं है। अगर फितरत से हटे तो इनकलाब आ जाए। अगर सूरज मशरिक से निकले तब तो फितरत हो, और अगर पलट जाए किसी के इशारे पर तो फितरत से हटेगा नहीं। उसका पलटना भी फितरत पर है, उसका निकलना भी फितरत पर है। आप कहेंगे दो बातें एक साथ ठीक कैसे हो सकती हैं? या तो मगरिब में डूबना फितरत हो या मशरिक से निकलना फितरत हो। अगर पलटे तो फितरत पर कैसे हो सकता है? उसको तो फितरत से हट जाना चाहिए, नहीं होगा, फितरत से नहीं हटेगा। इसलिए कि हम और आप इशारा करें तो सूरज नहीं हटेगा। जिसकी इताअत सूरज की फितरत में है और नहीं फरमा रहा है, जिसकी इताअत सूरज की फितरत में शामिल है, उसके इशारे से अगर हट जाए तो निकलना भी फितरत पर है, पलटना भी फितरत। इसलिए कि अपने मुस्तकर पर है, तवज्जो कीजिएगा। अब क्या हुआ? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, उन्होंने जो अच्छे शेर कहे हैं, अल्लामा इकबाल के अच्छे शेर, उसमें एक शेर है, जहां में अहले ईमान सूरज खुर्शीद जीते हैं, मोमिन की जिंदगी भी सूरज की तरह है। सूरज पे कोई गलबा नहीं पा सकता। तवज्जो कीजिएगा, मासूम फरमाते हैं, अगर मोमिन कामिल हो तो मुनाफिकों की बद्र में अगर तन्हा भी हो, उस वक्त तो वो मुनाफिक कह रहे थे, आज मैं लफ्ज़ बदल सकता हूँ, मुकस्सिरों की बद्र में भी तन्हा हो, कोई गलबा नहीं पा सकता। इसलिए कि मोमिन सूरज की तरह है, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। सूरज डूबता भी है उभरता भी है, मोमिन डूबता भी है उभरता भी है। मोमिन की जिंदगी में नशेब भी है और फराग भी है, मगर चूंकि सूरज अपने मरकज पर कायम है, इसी तरह मोमिन भी अपने मरकज पर कायम है। सूरज मरकज से हटे तो जवान आ जाए, मोमिन मरकज से हटे तो मोमिन पे जवान आ जाए। सूरज अपने मरकज पर है, हम अपने मरकज विलायत अली पर है। मुनाफिकों में रहे तब भी मरकज पर है, अपनों में रहे तब भी मरकज पर है। सलावत पढ़े बना और ऐसे मौके में मुझे हदीस याद आई, इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कहता हूँ पूछने वाले का
हम पर एहसान है? ये सवाल उसने पूछा है 1400 साल पहले। कहने लगा कि फर्जंद रसूल अगर हुज्जत खुदा पर्दे में हो, हम कैसे इस्तेफादा करें? सवाल तो जैन है, जो सामने ही नहीं है उससे फायदा कैसे उठाएंगे? इमाम ने कहा ऐसे ही जैसे बादल में सूरज से फायदा उठाया, जैसे बादल में रहते हुए सूरज से फायदा उठाया जाता है। यदि सूरज का बादल में जाना सूरज पे कोई असर नहीं डालता। इस्तेफादा करने वाले बादल में छुपे हुए सूरज से भी इस्तेफादा कर लेते हैं। और जो पहले ही अक्ल के अंधे हों उन्हें दिन में तारे तो नजर आ जाते हैं मगर सूरज से इस्तेफादा करने का तरीका नहीं आता। अब अगर कोई गैबत में हुज्जत खुदा हो मगर इस्तेफादा करने की सलाहियत हो तो वैसे ही काम लेगा इमाम से कि जैसे बादल में छुपे हुए सूरज से लिया जाता है। यानी इमाम ने समझाया है मिसाल देकर कि सूरज को समझ लो, इमामत समझ में आ जाएगी। साहिबान में तशरीफ फरमा, सूरज समझो, इमामत समझ में आ जाएगी। सूरज से वैसे इस्तेफादा करो जैसे इमामत से होता है। तवज्जो कीजिएगा, पहला इस्तेफादा तो यही है कि औकात नमाज सूरज तय करता है और नहीं फरमा रहा है। फजर होगी तो सूरज पर, मगरिब होगी तो सूरज पर, दोहर असर होगी तो सूरज पर। सूरज के बगैर नमाज नहीं है। यही तो हम कह रहे हैं, अकीदा विलायत के बगैर नमाज नहीं है। अच्छा भाई, मैं अब ऐलान कर रहा हूँ, कोई अमल करेगा नहीं लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूँ भाई, मैं 2 करोड़ रुपए दूंगा। कितने? 2 करोड़ रुपए। 15 मिनट तक सूरज देखते रहिए। नहीं समझ रहे आप? मुर्तजा भाई कहेंगे सूरज से आंख मिलाना किसी की हैसियत नहीं है। सूरज से आंख न सूरज को चिराग दिखाया जाता है, न सूरज से आंख मिलाई जाती है। अब अगर कोई डट जाए कि नहीं हम तो मुकाबला करेंगे और सूरज से आंखें मिलाएंगे तो फिर याद रखो, सूरज को देखो, नजर हटाओगे तो पीना ही सलामत नहीं रहेगी। यही वजह है जिन्होंने अली को छोड़ा, कोई अंधा हो गया, कोई बहरा हो गया। सूरज से आंख मिलाने की जरूरत न कीजिएगा। सूरज से अच्छा मुझे कहीं दिखाइए एक वक्त में 2 सूरज हों। पहुंच गए? एक एक जुमला है और आगे बढ़ता जाऊंगा। एक वक्त में सूरज एक होता है, इमाम भी एक वक्त में एक होता है। सूरज का कोई साया नहीं होता, इमाम का साया नहीं होता। सूरज का साया सब पर होता है, सूरज पर किसी का साया नहीं होता, इमाम का साया सब पर होता है। इमाम पर किसी का साया नहीं होता। और दूसरी बात ये कि ये दुनिया और ये जो 9 सैयारे घूमे चले जा रहे हैं, घूमे चले जा रहे हैं। अभी तो 9 है, 9 ही है ना, पहले 8 थे। कुछ सालों पहले नवा दरियाफ्त हुआ है, उससे पहले पता नहीं था। कोर्स की पूरी किताबें बदल दी गई, एक पढ़ाओ, इसलिए कि एक पहले गैबत में था, अब मिल गया है। अंग्रेज बड़े होशियार हैं, ये नासा वाले जो तहकीक कर रहे हैं 16 सितंबर, अगर खोया हुआ मिल जाए तो मान लेते हैं, एक का इजाफा कर लो, एक को बढ़ा दो। अभी तो 9 हुए हैं, 1400 बरस पहले मासूम बता चुके हैं। सैयारों की तादाद 12 है। जिन दिन 12 समझ में आएंगे, 12 सैयारे भी समझ में आएंगे।
बादशाह साहिब जलाल, कोई करीब नहीं आ सकता, कोई हमसरी नहीं कर सकता। 9 का काम है चुपचाप चक्कर काटते रहे। तवज्जो कीजिएगा, सूरज पर किसी की इताअत वाजिब नहीं है, सैयारों पर इताअत वाजिब है। तवज्जो कीजिएगा, इसलिए हम कहते हैं जो किसी एक की भी इताअत कर ले इमाम नहीं होता। इमाम या तो रसूल की इताअत करेगा या अल्लाह की करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, कहते सूरज पर किसी की इताअत नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, इमाम बड़े जामे हदीस है ये, इसको खोलते जाइए, क़यामत तक फैसले करते जाइए। मैं तो सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूँ आज की मजलिस में। अब अगर दुनिया इजमा कर ले हम तो नहीं घूमेंगे, हम तो सूरज के चक्कर नहीं लगाएंगे, जिसको जो करना है कर ले। तो आप भाईजानों से पूछे क्या हशर होगा, गौर नहीं फरमाया आपने। यानी अगर कोई सैयारा हर धर्मी पे उतर आए, इताअत को छोड़े, बगावत पर उतर आए, या यूँ समझ लीजिए कि अपनी मनमानी करने की कोशिश करे और कहे हम चक्कर नहीं लगाएंगे, हम अपनी जगह रुक जाएंगे, हम तवाफ नहीं करेंगे, सैयारा वही तबाह हो जाएगा। जो सूरज की मुखालफत करे, सूरज में असर नहीं पड़ता, वो खुद ही तबाह बर्बाद हो जाएगा। जाके तारीख में देखो, जो जमल और तनवीर में आए थे, अली का कुछ नहीं बिगाड़ सके, खुद ही तबाह बर्बाद हो गए। सूरज से टक्कर लेने वाला खुद नुकसान उठाएगा, सूरज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इमाम को कोई परवाह नहीं है, इमाम को कोई परवाह नहीं है। देखिए ये बल्ब की ट्यूबलाइटें जल रही हैं, आप किसानों को बुलाएं और कहें कि हम आज से आप लोगों को खेतों के ऊपर जो है छतें बना रहे हैं और जदीद बल्ब हमने मंगवाए हैं, बिजली फ्री है, उसकी रोशनी में फसलें तैयार करो। क्या समझे आप? किसान कहेगा पागल हो गए हो। आप कहेंगे क्यों भाई, जदीदियत जदीद दौर है, बल्ब है, तो फिर ये सूरज की रहमत की जरूरत क्या है? तवज्जो कीजिएगा, वो कहेगा कितने बड़े बल्ब ले आओ जो असरात धूप में है, उसका मुकाबला दुनिया का कोई बल्ब नहीं कर सकता। अब जिसको जहां तक समझना है समझ रहा है, अली के मुकाबले में कितने बना के ले आओ जो असर में अली में है, वो कायनात में। अच्छा चलिए, इतना तो फैसला हो गया ना यहाँ पर कि अगर सूरज ना हो तो गंदुम ना हो, सूरज ना हो तो चावल ना हो, सूरज ना हो तो बाजरा ना हो, सूरज ना हो तो खाने के लिए रिस्क ना हो। ये सूरज तुम्हें राज़िक समझ में आ रहा है, इमाम राज़िक समझ में आया। सूरज के बगैर खाना नहीं है, सूरज के बगैर आटा नहीं है, सूरज के बगैर रोटी नहीं है। तो इमामी का तो खा रहे हैं, इमामी का तो खा रहे हैं, लिहाजा रोशनी भी दे रहा है, रोशनी भी दे रहा है, जिंदगी तकसीम कर रहा है। जिंदा है तो सूरज से। कितने विटामिन हैं जो सूरज में है। डॉक्टर कहते हैं जाइए धूप दीजिए, नहीं लेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। भाई हम तो अब तक गदीर की धूप में हैं। हम तो अब तक गदीर की धूप में हैं, चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब देखिए एक बात, अब बच्चे चुके हैं तो ये मेरी बात जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये पढ़ रहे हैं आजकल, इसके जहन में ताज़ा है। और जो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं उन्हें तो सारे प्लेनेट के नाम भी याद होंगे, बच्चों को याद है। देखिए भाई 9 है, 9 है, और जो जितना दूर है कोने में उतना ठंडा है।
कम पहुंच रही है। कम पहुंचने की वजह से सर्दी वहां ज्यादा है। फिर अगला सैयारा, थोड़ी ज्यादा गर्मी पहुंचेगी सूरज की, सर्दी कम होगी। फिर आगे भैया जी जितने सूरज से करीब होंगे हरारत में इजाफा होगा, हरारत में इजाफा, और जितने दूर होंगे उतनी ज्यादा हरारत कम होगी, और जब हरारत कम होगी तो सर्दी ज्यादा होगी, और जब सर्दी ज्यादा होगी तो आबादी कम होगी। इसलिए दुनिया ऐसे स्केल पर है कि जहां पर ना बहुत ज्यादा गर्मी है और ना बहुत कम है। इसलिए हमारे यहाँ दोनों मौसम पाए जाते हैं। हम गर्मियाँ भी देखते हैं और हम सर्दियाँ भी देखते हैं। अगर सर्दियाँ छिन जाएं तो बीमारियाँ हो जाएं, और अगर सिर्फ गर्मियाँ रहें सर्दी ना हो या एक मौसम भी कम हो जाए तो फिर वो होश नहीं रहेगा जो आप देख रहे हैं। यानी हर चीज एतदाल पर है। वैसी ग़िज़ाएं हैं, वैसी खाना है, वैसी मुआशरत है कि जिस तरह के मौसम है वैसे ही फल हैं, वैसी सब्जियां हैं, वैसी दालें हैं। जैसा मौसम बनता है वैसे खुदा ने ग़िज़ाएं रखी हैं, और आपका जिस्म उसी के मुताबिक तरतीब पाता रहता है। मगर उसूल ये है कि जो सूरज से जितना करीब होगा वो उतना ज्यादा चमकेगा, और जो सूरज से जितना दूर भागेगा रोशनी उतनी कम पहुंचेगी। यानी जितने नजदीक होंगे मारिफत में इजाफा होगा, और जितने दूर जाएंगे सूरज से इस्तेफादा कम होगा। अब समझ में आया, बैठने वाले तो बहुत थे, बैठने वाले बहुत थे, मगर कोई दूर बैठा है, कोई करीब बैठा है। करीब और दूर वाला बराबर नहीं है। इसलिए हर कोई सलमान नहीं बना, अबू दर नहीं बना, हबीब इब्न मलाह नहीं बना, अबू बकर नहीं बना। जो जितना नजदीक रहेगा उतना इस्तेफादा, और जितना दूर रहेगा उतना गुमनामी में, उतना गुमनामी में। मैंने मुर्तजा भाई को एक बर्तन दिया और मैंने कहा इसमें निजात से पाक कर दीजिए। मुर्तजा भाई ने कहा ये पानी से नहीं होगी, धूप पे रख दीजिए, धूप पे रख दीजिए। सूरज की एक सिफत है पाक करना। जो निजात पानी से पाक ना हो वो धूप से पाक हो जाती है। हालांकि सूरज अपनी जगह है, सिर्फ धूप पड़ जाए तो ताहिर हो जाता है। अल्लाह ने सूरज में पाक करने की सलाहियत रखी है। यानी जो निजातें औरों से पाक ना हो उसे सूरज की धूप पाक करती है। इमाम वो निजात दूर करता है जो ना पानी से होती है। मुझे नहीं पता कहाँ तक पहुंच रहे हैं आप। देखिए नुक्ते हमारे पूरे होते हैं, आधे नहीं होते, पूरे होते हैं। सूरज वो निजात पाक करेगा जो सूरज ही से होगी। तवज्जो कीजिएगा। इमाम वो निजात दूर करता है जो ना पानी से होती है, जो ना मट्टी से होती है, अगला जुमला ना धूप से होती है। नहीं, इमाम वो वाली निजात दूर करता है। अब आप पूछेंगे वो कौन सी है? वो बाहर की नहीं है, अंदर की है। और अंदर की है सबसे बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली। इमाम से पूछा गया, अब हदीस पेश कर रहा हूँ, छठे इमाम से पूछा गया सबसे बड़ी निजात क्या है? इमाम फरमाते शिर्क है, सबसे बड़ी निजात शिर्क है। उसके बाद दो जुमले इरशाद फरमाए, कहने लगे बुत परस्त मुशरिक हैं, बुतों को पूजने वाले मुशरिक हैं। अगर यहाँ तक रुक जाते तो शिर्क की तारीफ पूरी नहीं होती। पहले जुमले में कहा सबसे बड़ी निजात शिर्क है, उसके बाद कहा बुत परस्त मुशरिक हैं, उसके बाद तीसरे जुमले में फरमाते जो अली को न माने वो ऐसा ही है जैसे बुत परस्त हो। शिर्क की निजात पानी से दूर नहीं होती, शिर्क की निजात खाक से दूर नहीं होती, शिर्क की निजात सूरज से दूर नहीं होती। ये तब होगी जब विलायत अली दिल में। विलायत दूर करती है शिर्क को। इसलिए
इसलिए कहते हैं कि ऐलान विलायत करना आपको शिर्क की सरहदों से बाहर ले आता है। शिर्क की तरह छट जाती है, खत्म हो जाती है जब ऐलान विलायत होता है। मासूम है 14, नाम कितने हैं? 7 नाम, 4 अली, 4 मोहम्मद, 2 हसन, 1 हुसैन। 14 में भी 1। जब 14 में दूसरा हुसैन नहीं है तो हुसैन जमाना कहां से पैदा हो? हुसैन जमाना कहां से पैदा हो गया? और फरमाया अल्लाह सलाम। तो तकरीबन 7 हो गए। अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन, मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन, जाफर और मूसा 7 हो गए। 7 में जलवा 14 का है, जलवा 7 में 14 का है। ये फैले तो 14 हो जाए, सिमटे तो 7 हो जाए, रिपीटेड नाम अगर निकल जाए तो 7 हो जाते हैं। सूरज की रोशनी को तोड़िए तो 7 रंग निकलते हैं। और नहीं फरमाया खुर्रम भाई बैठे उनके घर पे, मैंने 1.5 घंटे रंग पे तकरीर की थी। 7 रंग निकलते हैं। कितने? सूरज में 7 प्रिज्म से गुजारा, थोड़ा तो 7। दिखने में 1 धूप थी, लेकिन जब बातें में पहुंचे तो 7 रंग नजर आए। और जब रंग से रंग मिले तो फिर 14 रंग पूरे हो जाते हैं। तो ये जो दुनिया में आप रंग देख रहे हैं ये भी सूरज की वजह से है। यानी धूप के अंदर जो रंग छुपे हैं, जिसका जितना असर जहां तक पहुंचता है, जो जगह जितनी सलाहियत रखती है वही रंग अपना लेती है। यानी धूप पड़ती सब पर है, मगर जिसमें जितनी सलाहियत है वो उसी रंग में रंग जाता है, वो उसी रंग में रंग जाता है। यानी धर्म के मुताबिक जिनका जितना धर्म है वो धूप से अपनी शुआएं दे देता है। 1400 बरस से अकीदे का फैसला धरती पे तो हो रहा है, धरती पे तो हो रहा है। हालांकि परवरदिगार ये कह रहा है सिबगत अल्लाह, हमारे रंग में रंग जाओ। वमन एहसनो मिन अल्लाह सिबगतन, अल्लाह के रंग से बेहतर कोई रंग है? अल्लाह के रंग से बेहतर कोई रंग है? अब पता नहीं मुसलमानों पे कौन सा रंग चढ़ गया। मुहावरे, खुदा जाने किस रंग में है मुसलमान। उसने कहा रंग लो हमें, हमारे रंग में रंग जाओ। कोई गुलाबी में आ गया, कोई जर्द में आ गया, कोई हरे में आ गया, कोई काले में आ गया, कोई सफेद में आ गया। रोज बरोज रंग बदले जा रहे हैं। और ये मुझसे नहीं, बच्चों से पूछ लीजिएगा, एक ही जानवर है जो रंग बदलता है। रंग बदले चले जा रहे हैं। इमाम से किसी ने पूछा, तफसीर साफी मुल्ला फैज़ काशानी, कि अल्लाह ये कह रहा है हमारे रंग में रंग जाओ, खुदा की मुराद क्या है? इमाम फरमाते हैं अल्लाह ये कहना चाहता है कि रोज़े अलस्त, रोज़े अलस्त, अल्लाह ने मोमिनों को अली की विलायत के रंग में रंग दिया है। रोज़े अलस्त रंगा गया है। भाई तवज्जो रहे, हम रंगे विलायत को रंग से तशबीह दी है। मालूम है क्यों? इसलिए कि रंगरेज को जाके देखें, कपड़ा लेगा रंग में डालेगा, फिर चेक करेगा कहां तक पहुंचा, कोई जगह खाली तो नहीं रह गई। जैसे उसने देखा हाँ ये कोना खाली है, दोबारा के अंदर रंग रंग रगो रेशे तक पहुंचता है। मैं इससे बड़ा जुमला नहीं कह सकता। रंग रगो रेशे तक पहुंचता है। विलायत को रंग से इसलिए तशबीह दी कि विलायत पर ऐसे ईमान रखो, रगो रेशे में विलायत की खुशबू हो, रगो रेशे में विलायत का असर पहुंचे। ऐसा
नए कपड़े नहीं बनाए जाते। मुहर्रम आ रहा है, घर के अंदर ही रंगरेज के पास भी नहीं जाना, बस घर में ही कपड़े रंग रहे, उसकी अपनी सादगी होती थी, कपड़े रंगे जा रहे हैं। हम भी पहुंच गए, ने कहा भाई मुहर्रम आ रहा है, कपड़े रंग दो। रंगरेज ने कपड़ा देखा, रंग देखो। अच्छा तो कितने पैसे होंगे? चलो भाई 2 बार रंगा जाएगा। ये भी होता है, बहुत से 2 बार रंगे जाते हैं। मैंने कहा भाई कुछ अहमद कर रहे हो, 1 मरतबा रंग दो। 2 मरतबा क्यों? कहने लगे आपके कपड़े में पॉलिस्टर है। मैंने कहा ये इसका क्या मतलब हुआ? कहने लगे कॉटन और पॉलिस्टर को मिला के कपड़ा बना है, तो अब अगर हम कॉटन के रंग में रंगेंगे तो कॉटन ही पे कलर आएगा, पॉलिस्टर के ऊपर नहीं आएगा। और जब पॉलिस्टर के रंग में दोबारा रंगेंगे तो फिर कॉटन में नहीं आएगा, पॉलिस्टर पर आएगा। अब पता चला रंगने से पहले देखा जाता है रंगने की सलाहियत कितनी है। नहीं पहुंचे, रंगने से पहले देखा जाएगा सलाहियत है या नहीं है। इमाम ने कहा अल्लाह ने मोमिनों को विलायत के रंग में रंग दिया है, विलायत का रंग मोमिनों पे चढ़ता है, मुकद्दरों में नहीं चढ़ता। रंगने की सलाहियत तो हो। वरना आप कॉटन के कलर को पॉलिस्टर पे मलते जाइए, फायदा नहीं है, रंग आएगा ही नहीं, रंग चढ़ेगा ही नहीं। तवज्जो है? तो सलाहियत देखी जाती है, रंग चढ़ने की हैसियत भी है, रंग चढ़ने की हैसियत भी है या नहीं है। अब अगर कोई हश्र में पैगंबर से कहे या रसूल अल्लाह आप ये कहकर गए थे अल्लाह का रंग इख्तियार करो, रंग तो बता के ही नहीं गए, रंग बताते तो हम इख्तियार कर लेते। पैगंबर कहेंगे कब नहीं बताया, कब नहीं बताया। गदीर में अली को खड़ा करके बताया, बद्र में भेज कर बताया, उहद में जुल्फ़िकार नाज़िल करके बताया, खंदक में सकलैन की ज़र्ब के बराबर करके बताया, खैबर में अलम देकर बताया, फतेह मक्का पर कांधा पर चढ़ा के बताया, गदीर में हाथों पर उठाकर बताया। अगर अब भी नहीं समझ रहे तो समझ लो तुम में रंगने की सलाहियत है। इससे ज्यादा क्या बताएं, इससे ज्यादा क्या बताएं? बार बार तो बता रहे थे अल्लाह का रंग कौन है, अल्लाह का रंग कौन है, और गदीर में तो ऐसा रंग दिखाया। देखिए मुहावरों से काम ले रहा हूँ, मुहावरे काम आएंगे यहाँ पर। और मैं आपके चेहरों के रंग देख रहा हूँ, मैं दांत का रंग देख रहा हूँ। कोई था गुस्से में आया, कहने लगे अजीब रंग है आज तो, करप्शन शुरू हुआ, लोगों ने कहा आज तो सियासत का रंग ही और है। मैंने कोई शेर सुनाया, कहने लगे किसका है? मैंने कहा गालिब का। कहने लगे गालिब का तो नहीं है। फिर रंग नहीं है गालिब का, रंग शायरी का भी होता है, रंग सियासत का भी होता है, रंग मिजाज का भी होता है, अदादारी का भी रंग होता है, सोखानी का भी रंग होता है, नौहाखानी का भी रंग होता है। तवज्जो कर रहे हैं? पैगंबर ने, भाई लुत्फ दीजिएगा मुहावरों का, पैगंबर ने गदीर में विलायत का ऐसा रंग दिखाया, किसी का रंग चढ़ रहा था, किसी का उतर रहा था, किसी का फीका पड़ रहा था, किसी का दर्द हो रहा था, किसी का सुख हो रहा था। खुदा आपको सलामत रखे। एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि ये इमाम हुसैन ने जब हुज्जत तमाम की है तो ये हुरी क्यों है? और लोगों और मतलब खुदा ने खासा हाकम बदहन कि क्या इमाम हुसैन के कलाम में कोई कमी थी, और वाला क्यों नहीं आया और दूसरे लोग क्यों नहीं आए? मैंने कहा देखिए बात सिर्फ ये है कि हुसैन ने हक का रंग फेंक दिया उस तरफ जिसमें रंगने की सलाहियत थी, वो आ गया।
उम्मीद को लगाए, हर किसी से उम्मीद को लगाए। और यहाँ एक बारीकी है, सिबगतल्ला, सिबगा कहते हैं रूहानी रंग को, रूहानी रंग जो मैंने अभी गिनवाया है, शायरी का रंग, मिजाज का रंग, हंसी का रंग, खुशी का रंग, गुस्से का रंग। और जो मादी रंग होता है उसे लौन कहते हैं, लाम वाव नून, तवज्जो है। अल्लाह कह रहा है रूहानी रंग में रंगो। मुसलमान लाल पीले के चक्कर में पड़ गए, मादी रंग में रंगने को नहीं कहा है, रूहानी रंग में। अब रूहानी रंग तलाश करो, अल्लाह का कौन सा है? हमें तो पता है, हम 1400 बरस से रंगे हुए हैं। हम 14, हमारा रंग नहीं बदल रहा, हमारा रंग फीका नहीं पड़ रहा। अगर तुम्हें मादी रंग की तलाश है तो चलो मादी ही सही। कुरान में तो अल्लाह का मादी रंग कहीं भी नहीं है। अल्लाह के घर चलते हैं, काबे का पर्दा देख लेते हैं, जो रंग काबे का होगा वही खुदा का। खुदा का शुक्र है, हम तो मादी में भी रंगे हुए हैं, हम तो रूहानी में भी रंगे हुए हैं, हम मादी में भी रंगे हुए हैं, आखिर जुमला, और रूहानी में भी रंगे। और अगर बहुत ज्यादा रंगने का शौक हो तो तरीका एक ही है, कभी कमा मारते हैं, कभी तंजीर मारते हैं, हुसैनी रंग में रंग जाए। हमारा तो ये रंग है भाई, हमारा तो यही रंग है। और क्योंकि ये हुसैनी रंग है तो कायनात इस रंग में रंग जाती है, रंग जाती है। चाहे आसमान से खून बरसे, चाहे सूरज सुर्ख हो जाए, इस बात का ऐलान है, हम भी हुसैन हैं, हम भी हुसैन, हुसैन के रंग में रंग गए। मगर कयामत उस दिन हुई कि जब 11 मुहर्रम को काफिला मख्तल से गुजारा गया, एक बहन ने भाई का पामाल लाशा देखा। भाई का लाशा देख के बहन बर्दाश्त न कर सकी, उस वक्त अपने सर को ऊंट के कोहान पे मारा। इस तरह से मारा, रावी कहता मैंने खून बहता हुआ देखा, मैंने खून बहता हुआ देखा, अपने आप को नाके से गिराया, रोती हुई भाई के लाशें बनाई और गिरा दिया लाशे के ऊपर। और उसके बाद मर्सिया पड़ा, सल्ला अलैका मलिकुस समा जिस्मुन सरा बिल अरा मुक़द्दमुल आदा। या रसूल अल्लाह, आप देख रहे हैं, अरे जिसके दादा का जनाजा मलाइका ने पढ़ा हो, उसके नवासे का लाशा किस हाल में पड़ा हुआ है, उसके नवासे का लाशा किस हाल में पड़ा हुआ है। काफिला रवाना हुआ, रवाना होते होते एक मर्तबा कूफे के बाजार में पहुंचा, कूफे के बाजार में पहुंचा। बाजार में पहुंचना था, किसी का सर कूफे के दारुल इमारा के दरवाजे पे नजर आया, दरवाजे पर नजर आया। एक मर्तबा जब सर को देखा तो अली की बेटी ने सर को पहचाना और सकीना से कहा, सकीना चचा को सलाम करो, चचा को सलाम करो। और रोकर पूछती है, फूफी अम्मा किसका सर है? क्या नहीं पहचाना? चचा मुस्लिम का सर है, चचा मुस्लिम का सर है। काफिला आगे बढ़ रहा है, हुसैन का सर नौके नहला पर है, आंखें बंद हैं, मगर जब मुस्लिम का सर आया, हुसैन की आंखें खुले। एक मर्तबा सर वहां रुक गया जहां मुस्लिम का सर लटका हुआ था। मख्तल के जुमले हैं, हुसैन के रुखसार से मुस्लिम के रुखसार मिल गए, आंखों से आंसू जारी हुए, गोया बताना चाहते थे मुस्लिम हुसैन आया है मिलने के लिए। खुदा आपको किसी हम में न रुलाए, मुस्लिम हुसैन आया है, मुस्लिम हुसैन आया है। मुस्लिम, कितनी अजीब बात है, तुम भी गुर्बत में कत्ल हुए, हुसैन भी गुर्बत में मारा गया, तुम भी प्यासे शहीद हुए, हुसैन भी प्यासा मारा
कत्ल हुए, मगर मुस्लिम एक फर्क है, और फर्क ये है कि तुमने ज़ैनब को सरबराहना नहीं देखा, तुमने फुफियों बहनों का खुला सर नहीं देखा। देखो हुसैन किसके साथ आया है। शिमर ने ताजियाना उठाया, सैयद सज्जाद की तरफ बढ़ा और बढ़ के कहता है, अरे हुसैन ने कहो आगे जाए वरना हम बच्चों को ताजियाना मारेंगे। हुसैन का सर आगे बढ़ गया। जब काफिला करीब पहुंचा, ज़ौजे मुस्लिम ने वाली का सर देखा। खुदा को किसी गम में न रुलाए, दो जुमले मसाइब के, मुझे मसाइब पढ़ने नहीं थे, लेकिन खुदा जाने मेरी ज़बान पे मुस्लिम का जिक्र आ गया, तो फिर ये दो जुमले सुन लीजिए। एक मर्तबा रुकैया की नजर मुस्लिम के कटे हुए सर पर गई, और जब अपने शौहर के सर को देखा तो देख कर कहती है, वाली मुझे नहीं पता था इन हाल में भी देखना पड़ेगा, मुझे नहीं पता था मुकद्दर ये दिन भी दिखाएगा। अब इतना सुनो, दो बच्चे मेरे साथ रह गए थे, दो बच्चों को तुम कूफे ले गए थे। आशूर के दिन जब शहादतों की बारी आई तो मैंने अपने बच्चे कुर्बान किए, और ये सोच रही थी इन बच्चों को कुर्बान कर दो। दो बच्चे तो सलामत हैं, दो बच्चे तो जिंदा हैं, अगर कभी कूफे जाना होगा तो अपने बच्चों को तलाश करूंगी। ऐ मेरे वाली, मैं कूफे आ गई हूँ, अब बताओ मेरे शहजादे कहाँ है। कटे हुए गले से आवाज आई, अरे कहाँ के शहजादे? मुसय्यब में नहरे फुरात के किनारे सरों को काटा गया, लाशें दरिया में बह रही। हमारे लाए जिक्र को कबूल फरमा, नाज़ों को कबूल फरमा। सैयद शुहदा के मुखलिस अदाकार हज़रत जाफ़र बिन गिरामी और उनके साथ जिस मरहूम की मजलिस है, हाँ, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, क़ब्र को विलायत देने के चिरागों से रोशन फरमा, हुज्जत आखिर के ज़हूर में ताज़ीर फरमा। एक मरतबा सूरह अल-हम्द, तीन मरतबा सूरह इख़लास तमाम मोमिनीन के लिए रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर